Dear students, in today's video, we will be talking about the nucleotides. Nucleotides are the building blocks of nucleic acid. Nucleic acids. As we already are familiar with two nucleic acids, these are RNA and DNA. That means ribonucleic acid and deoxyribonucleic acids. So जो हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की, ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. तो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ थ्री स्मॉलर मॉलिक्यूल्स which are, or we can say they are made up of three components, and these three components are: number one, pentose sugar; second is nitrogen bases; and third one is phosphate group. So we'll be talking about all these three components one by one. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में. पेंटोज शुगर, जैसा कि आपने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा है, आपने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, तो उसी का एक कंपोनेंट है पेंटोज शुगर. पेंटोज जैसे यहां से नाम से ही मालूम है कि it is a sugar molecule having 5 carbon atoms present in it. So जो pentose sugar in nucleotide, दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होती है, that is राइबोज जो कि प्रेजेंट होती है आरएनए में, एंड सेकेंड इज डीऑक्सीराइबोज जो कि प्रेजेंट होती है डीएनए. तो स्टूडेंट्स, हम इनका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आप भी मेरे साथ बनाएं. यहां पर हमारे पास ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है. हियर वी हैव फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन विल बी हियर. CH2OH. अब हम जानेंगे कि इसके अलग अलग पोजीशंस पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. Here we have OH and H. Here H and OH, H and OH, obviously H over here. और जब हम इसकी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं, we'll have 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime and 5 prime position. जब हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर की, it is similar to this ribose sugar molecule except a very minute single difference, that is, just draw it along with me: oxygen, carbon, carbon, again a carbon, third carbon, this is fourth carbon and this is the fifth carbon, and obviously I'll be adding the molecules over here. And here lies the difference, that is at 2 prime position, जबकि राइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स में OH प्रेजेंट है और डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स में यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चलता है, डीऑक्सी का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस राइबोज मॉलिक्यूल, it lead to the formation of deoxyribose sugar molecule, and this deoxyribose sugar molecule is present in
DNA. So this was the first component of this nucleotide molecule. Next, we'll be talking about the second component, that is nitrogen bases. Nitrogen bases are basically the nitrogen containing heterocyclic compounds. There are two types of nitrogen bases. Two types of nitrogen bases are there, and these are purine and pyrimidines. Purines are basically dicyclic and 9-membered heterocyclic rings, and pyrimidines are monocyclic and 6-membered heterocyclic rings. As you all are familiar that we have 5 nitrogen bases, 2 falls under the category of purines and 3 falls under the category of pyrimidines. So purines are adenine and guanine, while the pyrimidines are thiamine, cytosine and uracil. As we all are familiar that this adenine and guanine are present in both DNA and RNA, while when we talk about the pyrimidine, in DNA the pyrimidines are thiamine and cytosine, while in RNA the pyrimidines present are cytosine and uracil. So here we'll be talking about the detailed ring structure of all these 5 nitrogen bases along with their numbering. So students, it is very easy to draw the ring structure of these nitrogen bases, and here we shall start with the pyrimidines, which are 6-membered ring. आप भी मेरे साथ बनाना शुरू करें. We have carbon over here, nitrogen, carbon, 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 and second nitrogen. This is carbon containing heterocyclic ring. So here we have a double bond, and we should be familiar कि कहां पर इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो यदि हम नंबरिंग की बात करें इससे पहले, तो नंबरिंग शुरू हम करते हैं यहां से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और जो 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है बेस्ड अपॉन देयर फंक्शनल ग्रुप. अगर हम बात करें यूरासिल की, तो यूरासिल में here we have oxygen, and rest will be just completing the valencies of all these carbon atoms. जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कार्बन की वैलेंसीज है 1, 2, 3 एंड 4. यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज 1, 2, 3. यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगाएंगे. यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज 1, 2, 3. यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे. नाइट्रोजन की वैलेंसीज 1, 2 एंड थर्ड पोजीशन पर हम हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे. कार्बन की वैलेंसीज 1, 2, 3 एंड 4 एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी दिस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल. इससे बहुत थोड़ा सा जो फर्क है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड. इसी को हम कंपैरेटिव तौर पर यहां पर बनाएंगे. इट इज कार्बन. हाँ, आप भी बनाए मेरे साथ. नाइट्रोजन, इट इज कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. देखिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके सिमिलर है.
एक छोटा सा फर्क इसमें जो है दैट इज, ये बिल्कुल सेम है, यहां पर भी ऑक्सीजन होगा एट पोजीशन नंबर 3. These are the, at position number 3 we will have methyl group instead of hydrogen. यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा एट पोजीशन नंबर 3. एंड बाकी हम इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर दें. यहाँ पर देखें इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 4. इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है 1 2 3 4. इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे. यहाँ पर we'll put another hydrogen and the valency is completely 4 and here the valency is 3 for nitrogen and that is thiamine, right? And similarly जो हम यूरेसिल का आपके साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. दैट इज इसी के साथ हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट इज कार्बन the nitrogen over here, it's carbon and obviously nitrogen. जो skeletal structure हमने सेम बनाया जैसा कि यूरासिल या और थायमिन का बनाया था. नंबरिंग सेम रहेगी 2 3 4 5 and 6 with the only difference that at number 4 will have NH2 group present. बाकी हम यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट कर देंगे. यहाँ पर देखें कार्बन की वैलेंसीज 1 2 3 तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे. here डबल बॉन्ड यहाँ पर इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए पुट हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन ओवर here. यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ cytosine. So this is how simple the structure of these uracil, thymine and cytosine is to draw. Right friends? So again we'll be talking about the structure of pyrimidines. We'll be talking about the structure of purines. So जब हम प्यूरिन्स की बात करते हैं जैसा कि हमने पहले बात करी है कि प्यूरिन्स आर 9 मेंबर्ड रिंग्स एंड डाइसाइक्लिक कंपाउंड्स. सो डाइसाइक्लिक का मतलब है कि उसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होंगे. तो 2 रिंग्स का जब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं हम वी शैल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, अगेन कार्बन ओवर हियर एंड नाइट्रोजन. ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है सेम जैसा हमने पिरामिडिन का बनाया था. यहां पर हम ड्रॉ करेंगे नाइट्रोजन, हियर इट विल बी कार्बन एंड अगेन इट विल हैव नाइट्रोजन ओवर हियर. और इसकी जो हम नंबरिंग शुरू करते हैं, नंबरिंग वी स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this is the basic purine dicyclic 9-membered ring structure. तो जब हम बात करेंगे एडेनिन की तो एडेनिन में will have this NH2 group present over here and rest will be putting these double bonds over here and इसको हम complete करेंगे. These are the double bonds. इसको मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर बनाता हूँ. इसी को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एडेनिन स्ट्रक्चर को. कार्बन, अगेन नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन. यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन, यहाँ पर है नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. नंबरिंग आप यहाँ पर देख सकते हो. तो जब हम एडेनिन की बात कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन. और बाकी हम कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट है. हियर वी शैल पुट हाइड्रोजन, यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है.
here valency of nitrogen is complete, and I need to put hydrogen over here and hydrogen over here. So this is the structure of adenine, and similarly we can draw out the structure of guanine. तो थोड़ा सा डिफरेंस इसी स्ट्रक्चर से हम ड्रॉ करेंगे जो गुआनिन का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन दैट इज कार्बन एंड नाइट्रोजन. इसी से हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस that here we have present oxygen over here. ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा. बाकी हम कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसीज को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है. यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे. कार्बन की वैलेंसीज 1 2 3 4 1 2 3. यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, नाइट्रोजन इज कंप्लीट ओवर हियर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. This is how the guanine looks like. This is adenine and this is guanine. So friends, this was all about the second component, that is nitrogen bases of these nucleotide molecules. Next, we'll be talking about the third component, and the third component is phosphate group, that is PO4 3 negative. PO4 3 negative molecule ये यहाँ पर है, that is PONO, that is negative over here, negative charge over here. So this is the structure of phosphate molecule. तो इन तीन कंपोनेंट से हम एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनाते हैं. वो कैसे, वो ध्यान से देखें आप. इससे पहले जब हमने बात की थी पेंटोज शुगर की, उसमें हमने जो नंबरिंग करी थी दैट वाज 1 प्राइम 2 प्राइम अप टू 5 प्राइम, और जब हमने नाइट्रोजन बेसिस में नंबरिंग करी थी दैट वाज 1 2 3 अप टू 6 इन केस ऑफ pyrimidines एंड अप टू 9 इन केस ऑफ प्यूरिन्स. और ये जो नंबरिंग हमने प्राइम और विदाउट प्राइम करी है, दिस इज ओनली टू डिस्टिंग्विश द नंबरिंग when we will be adding all these molecules together. So friends, we have before making these nucleotides, when pentose sugar combines with nitrogen bases, it leads to the formation of nucleoside molecule. And what is this nucleoside molecule? जैसा कि मैंने अभी कहा कि पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजन बेसिस के साथ कंबाइन करती है, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल एस. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, सपोज वी हैव दिस पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर अगर हम यहाँ पर डीएनए बना रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर हम बनाएंगे, और अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हम राइबोज शुगर की बात करेंगे. तो इस पेंटोज शुगर में दिस इज द 5' एंड दिस इज 1 प्राइम 2 prime 3 prime and 4 prime. So at 1 prime end the nitrogen base gets attached over here. तो यदि हम बात कर रहे हैं pyrimidine की, तो pyrimidine जब इससे अटैच करता है, it attaches with this molecules at number 1 position. It is like this. यहाँ पर कार्बन था, कार्बन कार्बन और कार्बन अगेन नाइट्रोजन, और यहाँ पर दिस वाज नंबर 1 पोजीशन एंड रेस्ट वाज. जैसे सपोज हम बना रहे हैं यूरेसिल, अगर जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम यूरेसिल का स्ट्रक्चर बना देंगे ऑब्वियसली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो इसीलिए हमने राइबोज शुगर में 1 प्राइम लिखा था और यहाँ पर 1 लिखा था, ताकि हम इन पोजीशंस को डिस्टिंग्विश कर सके. तो इस तरह से राइबोज पेंटोज शुगर में यहां पर कहूंगा पेंटोज शुगर राइबोज हो जाएगी अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं,
और डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी यदि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो उसके नंबर 1 प्राइम पोजीशन पर जो नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, अगर पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है तो नंबर 1 पोजीशन से इससे जुड़ेगा, और यदि वो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है तो नंबर 9 पोजीशन से वो यहाँ पर अटैच होता है, जिसको हम देखें कैसे। यहाँ पर मैं सपोज एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाता हूं। एडेनिन विल बी समथिंग लाइक दिस, विल हैव कार्बन, विल हैव नाइट्रोजन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और जैसा कि हमने इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ेगा। इसका जो OH और H मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं एंड दिस बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड। सो यदि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सपोज adenine, I'll write here NH2, this bond and this bond over here। बाकी मैं यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट कर दूंगा, यहाँ पर वैलेंसीज है। सो इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल। सो बेस्ड अपॉन कि इस राइबोज के साथ कौन सा नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, अकॉर्डिंगली देयर नेम्स आर गिवन। Suppose it is ribose sugar and it can be nitrogen base is here adenine, and here we can have deoxyribose sugar and it can be adenine molecule over here, and likewise different combinations are formed. And as we were talking about these nucleotide molecules are formed when at 5' position at this position the phosphate molecule will be attached. This is oxygen, this is oxygen, oxygen and oxygen. So this phosphate molecule gets attached at this position and it leads the formation of nucleotide molecule, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। So friends, this is how the nucleotide molecule looks like। जैसे कि हमने इसके 3 components की बात की, this was pentose sugar component, this is nitrogen base component and this is phosphate group component। So this is all about nucleotide molecules। और यदि हम different type के nucleotide molecules की बात करें तो based upon कि उसमें nitrogen base कौन सा लगा है और ये पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल कौन सा लगा है, उसके बेसिस पर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। इस तरह से हमारे पास पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप की सहायता से एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स किस तरह का होगा ये डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट ओवर हियर, वेदर इट इज राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, and what type of nitrogen base is present over here। और जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि यदि ये फॉस्फेट ग्रुप यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा then it will be nucleoside molecule, and when this phosphate group will be present it will form a nucleotide molecule। So here we'll be giving some example of nucleotide molecules। अब यदि यहां पर राइबोज शुगर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली जो प्रेजेंट होगा आरएनए के अंदर। यहां पर यदि राइबोज शुगर प्रेजेंट है तो बेस्ड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडिनाइलिक एसिड। अगर यहां पर एडेनिन प्रेजेंट है, इट कैन बी ग्वेनाइलिक एसिड। अगर यहां पर ग्वेनिन प्रेजेंट है, देयर कैन बी साइटिडाइलिक एसिड।
अगर यहां पर साइटिडिन प्रेजेंट है या साइटोसिन प्रेजेंट है, एंड इट कैन बी यूरिडाइलिक एसिड। अगर यहां पर यूरेसिल प्रेजेंट है, एंड मैं एक बात क्लियर कर लूं कि जब हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में यहां पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ थायमिन। और यदि मैं यहां पर बात करूं डीएनए की, तो ऑब्वियसली हियर द पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल विल बी योर deoxyribose sugar, and based upon this deoxyribose sugar and combination of nitrogen bases, the different type of nucleotide molecules can be deoxyribo, that's adenylic acid deoxyribo, क्योंकि हम पहले शुगर की बात करेंगे, that will be deoxyribo adenylic acid, right? And there will be deoxyriboguanylic acid, there will be deoxyribocytidilic acid, एंड ऑब्वियसली यहां पर यूरेसिल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो इट विल बी deoxyribo, that will be deoxyribothiamidilic acid. So friends, these are the different types of nucleotides present in RNA and DNA, और आपने ये जाना कि न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स किस तरह से 3 कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसेस और फॉस्फेट ग्रुप की सहायता से बनते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए and RNA, which is obviously the polymer of these nucleotide molecules. So till then, take care.